Hello and welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. 3 days ago, 25-year-old Momita passed away of COVID. Momita was a protester sitting at the Tikri border, the border that Delhi shares with Haryana. She was a member of the anti-farm law protest. Momita had come to Tikri border after she was impressed by the campaign that these farmer leaders had carried out during the West Bengal elections. She belonged to the state. She was from Kolkata. She passed away after, on the 24th, she developed breathing issues. She complained of breathlessness. She was taken to a private hospital in Haryana, and at the end of April, she passed away from COVID and a lung infection. What's shocking though is that the DGP of Haryana says that Momita could have been saved. Farmer leaders who are sitting at Tikri were asked to help test the people sitting there for COVID. They refused. Momita was one of the people who could have been tested, could have been diagnosed, could have been treated in time, but these farmer leaders did not allow any of that. And what is worse, those who are at the helm of these protests are still defending their decision. जब वो बीमार थी उसके पेरेंट्स को बुला लिया था, पेरेंट्स मौजूद थे। ओके। तो वो इशू तो खत्म हो गया था। पर सर बाद में किसान नेताओं को तब क्रिटिसाइज भी किया गया कि भाई आप लोगों को प्रशासन बार बार कह रहा है आप टेस्टिंग कराओ। ओके। अगर आपने टेस्टिंग नहीं कराते तो ये लड़की नहीं मरती। अगर आप टेस्टिंग कराते, ऐसा नॉलेज मनी भाई जानकारी करके जब बताऊंगा। तो इससे अगर ये आंदोलन स्थगित हो जाए तो कोरोना खत्म हो जाएगा। अगर ये गारंटी हो तो स्थगित करवा देंगे हम। अगर देश से ये खत्म हो जाता है तो करवा देंगे। ये तो भाई बीमारी गांवों में भी है, उसमें भी है, शहर में भी है। यहाँ तो लोग जितने यहाँ पे हैं तो लोग सुरक्षित है। यहाँ पे तो यहाँ कब तक फोकिंग हो जाती है, छिड़काव हो जाता है। हॉस्पिटल बढ़ने चाहिए, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है इसमें हॉस्पिटल बनने चाहिए, कोविड के सेंटर बनने चाहिए। कोविड उससे खत्म होगा, आंदोलन करने से कोविड खत्म नहीं होगा। And if you think this is a horror, then wait till you hear their plans for the 8th of May. That's a day when the entire state of Punjab will be under a lockdown. But 32 farmer unions have now declared that on the 8th of May, they are going to tell people to defy the lockdown. They've already given this call. They have told citizens to turn out on the streets. They have told shopkeepers to keep their shops open. And they say all of this is in interest of democracy. And that's not where it ends. In fact, the Sanyukt Kisan Morcha has now urged all farmers to reach Delhi's borders on the 10th and 12th of May in an effort to try and intensify their protests. The thing is this protest now fast turning into a death wish? Is this a deliberate, negligent attempt pushing people who are with them into the mouth of death? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਓ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। You're watching the News Hour at 10. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. All right, joining us on the debate, R.P. Singh, National Spokesperson of the BJP, Dr. S.C.L. Gupta, past President of the Delhi Medical Association, Chaudhry Avneet Panwar, President of the Kisan Sena, Dharmendra Malik, Media in charge of the Bharatiya Kisan Union, and Dushyant Nagar, political analyst. I want to start by asking you, Dharmendra Malik ji, is this a deliberate attempt? Because I want you to first listen to a Bharatiya Kisan Union leader, one of your leaders. वो कहते हैं that farmers gathered together at Momita's funeral because they did not know that she was COVID positive. So already आपकी एक protester COVID से उनकी मौत हो गई और फिर सब लोग उनके funeral में गए, यानी कि वहां पर भी negligence। एक बार पहले आप उनकी बात सुन लीजिए। देखिए वो लड़की पाई है या नहीं पाई, उसके शहादत होने के बाद इन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव है, पर हमारा तो यही मानना था कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं थी। सभी किसानों ने मिलके उनका अंतिम संस्कार किया है। कोरोना पॉजिटिव में तो आपको पता है कि किस तरह सरकार वो नहीं करती है। अध्यक्ष है भारत के JP नड्डा, वो ये कह रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओ और धरने प्रदर्शन करो।
तो किसानों को ये रोकने के लिए बोल रहे हैं और अपने धरने प्रदर्शन इनके चालू हैं। धर्मेंद्र जी, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। कोविड से मौत और कोई कोविड प्रिकॉशन नहीं, कोई पीपीई किट नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्किंग नहीं, ये क्या है? कोई कोरोना की खबर आप देश में इतनी मौतें हो रही बस आंदोलन के कारण हो रही है। कल को आपको 4 नाम भेज दूं जिनकी स्थिति खराब करा रखे, एक 9 से 20 लोग बचे। ये सरकार तो दवा भी नहीं दे पा रही, टेस्ट भी नहीं करा पा रही, छोड़ दिया देश को। आपकी आवाज ब्रेक हो के आ रही है, आपकी आवाज टूट कर आ रही है। अब आपकी आवाज ठीक करवाते हैं, तब तक चौधरी अवनीत पवार आप बताएंगे कि कैसे एक ऑलरेडी टीकरी बॉर्डर पे कोविड से मौत हो चुकी है और अब बाकी लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर जब फ्यूनरल था तो कोई भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। चौधरी अवनीत पवार, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहले तो आपका ये जो टॉपिक उठाना है बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उठाया। मैंने वेस्ट बंगाल पे जब ये बीजेपी के लोग बाग प्रचार के लिए यहाँ से सारे देश के सांसद विधायक पहुंच रहे थे, जितने लोग वहां पहुंच रहे थे तब उन्हें नहीं पता था कि कोविड का क्या हाल चल रहा है। जिस लड़की की, जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, हमें तो जानकारी नहीं थी कि उसको कोविड है कि नहीं है। अगर सबको ये जानकारी होती तो कोविड इतना देश में फैलता ही नहीं। आपको कैसे जानकारी नहीं थी? कोविड का इलाज चल रहा था उसका बहादुरगढ़ में, कैसे आपको जानकारी नहीं थी? आप जानकारी नहीं लेते कि जो लोग आपके प्लेटफॉर्म पे प्रोटेस्ट करते हैं, जो संक्रमित हो जाते हैं, कि उनका क्या हुआ? उनको लंग इन्फेक्शन था, कोविड पॉजिटिव थी वो। पुलिस को पता है, परिवार को पता है, आपको पता नहीं है, तो पता रखना चाहिए आपको। ये तो सारे देश को भी पता है ना कि कोविड का क्या चल रहा है। कोविड-19 जब देश में आया था उसके बाद ये दूसरा अटैक हमारे देश में आ रहा है, तो बीजेपी वालों ने इतने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन की क्या जरूरत थी? क्यों इस पूरे देश के विधायक सांसद भेजे? आप ये भी तो तथ्य निकाल के देखिए, ये भी तो एक आप डेटा निकाल के देखिए, कितने विधायक, कितने सांसदों को कोरोना हो चुका है। क्या वे अपने साथ जितने लोग वेस्ट बंगाल में लेकर गए थे वे वापस आए? तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि कोविड से इतने लोगों की जान जा रही है, इस बच्ची की भी मौत हो गई, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो एक ही मौत हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं, यही कह रहे हैं ना चौधरी साहब? हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अगर हमारे देश में इतनी बुरी हालत चल रही है, हम किसी के डेथ में चले गए तो इतना बड़ा इश्यूज कर दिया गया, क्या हमारे केंद्र सरकार के हाथ में नहीं था कि कोविड को पहले से रोका जाता? क्या उनके हाथ में नहीं है ये सब चीजें? क्या उनके? अरे सर, सरकार जो कर रही है, आप और फैलाना बंद करेंगे? वहां से कृपया उठ जाइए। वहां पर ऑलरेडी एक मौत हो चुकी है और संक्रमित हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूं कि कैसे वहां पर जो लोग थे, जो उनके फ्यूनरल में शामिल थे, वो संक्रमित हो सकते हैं। कम से कम उनकी जान की तो परवाह कीजिए। मैडम, आप एक इलेक्शन यूपी और दिल्ली में और करवा दीजिए, कैसे भी करके देख लीजिए, फिर सब कोविड को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या केंद्र सरकार इस चीज को रोकेगी कि नहीं रोकेगी? इलेक्शन कैंपेनिंग करने में तो इनको तकलीफ नहीं हो रही है, आपको हमारे धरने से तकलीफ है। आप ये 3 कानून अभी घोषणा कर दीजिए, 3 कानून लिए जाते हैं, आगे से हम इसे आगे वो। अरे क्यों भाई, आपका आंदोलन इलीगल है, आप जो रास्ता रोक करके बैठे हुए हैं वो गैर कानूनी है। ये तो खुद कोर्ट ने बोला हुआ है, ये गैर कानूनी जो आप रास्ता घेर के बैठे हैं, वहां से अगर आप कानून की कोई फिक्र नहीं करते, जान की तो फिक्र कीजिए, अपनी जान की फिक्र कीजिए। या आप जैसे नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, वहां पर जो बेचारे लोग बैठे रहते हैं उनकी जान जाती है, आप सिर्फ टीवी पे आकर के भाषण देते हैं। बहुत बढ़िया बात कही मैडम। आप ये बताइए कि रास्ता हमने रोका है कि सरकार के लोगों ने वहां बैरिकेड लगवाए हैं? हमने तो जाके नहीं रोका, हम तो सीधे दिल्ली जा रहे थे। रोका किसने रास्ता? आप हमें अंदर नहीं जाने दिया तो रास्ता वहां रुक गया, अपने आप थोड़ी रुक रहे। सर, ये अब मैं किसने रास्ता रोका वाली बहस में दोबारा नहीं जाना चाहती, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रही हूं। यहां पर एक बच्ची की मौत ऑलरेडी हो चुकी है, वहां पर कोविड और फैल सकता है, आपका वहां पर अब बैठे रहने का क्या लॉजिक है? आप लोगों की जान दांव पे लगाना चाहते हैं? हमारा पहले दिन से क्लियर है, 3 कानून के पीछे हम यहाँ बैठे हैं, ये आप रद्द करवा दीजिए। रही बात आपने कहा एक बच्ची की डेथ हो चुकी है, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, पूरे देश में 4000 5000 रोज डेथ हो रही है। आप एक बच्ची तो दिख रही है, आप ये किसान जो यहाँ भूखे नंगे और ये सड़क पर सप रहे हैं वो नहीं दिख रहे आपको? आरपी सिंह, यही है ना? तो आपके लिए जान की कीमत बहुत कम है कि 4000 लोग मरी रहे हैं तो एक बच्ची और से आप जाके बैठिए ना, फिर बच्चों को क्यों बैठा रहे हैं वहां पे? जो सो कॉल्ड नेता हैं वो जाके क्यों नहीं बैठते? क्यों हम आरपी सिंह, मैडम
पद्मजा मैं अब जाइए ना, अभी जाइए। कोविड के दौरान सिर्फ नेता जाके बैठे, बाकी सब लोगों को घरों पे भेज दें। आप 10 लोग जो स्टेटमेंट रिलीज करते हो, आप 10 लोग जाके बैठो वहां पे। क्यों बाकी लोगों को घर भेजो। जिनकी भी जमीन है उनको औरों के कंधे पे बंदूक रख के गोली मारना बहुत आसान है, खुद जाके बैठिए वहां। आप एक काम करिए ना, गोली लगवा दीजिए ना इन सब नेताओं के। लोकतंत्र में सामने से आप लीड कीजिए, मैडम। आप दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए। एनीवे, आरपी सिंह, गोली लगवा दीजिए ना, बात ही खत्म कर दीजिए। नहीं, कोई आपको गोली नहीं मारेगा। आप वहां पर बैठ करके एक कोरोना बम बन सकते हैं। गोली मारना बहुत दूर की बात है, वो मत कीजिए, लोगों की जान खतरे में मत डालिए। आरपी सिंह, आप पहले ये बताइए कि आप 1000 चीजें बोलिए इन किसान नेताओं को। एक सेकंड, आपकी सरकार है हरियाणा में, आपकी दिल्ली पुलिस आपके कंट्रोल में है, आप क्यों नहीं हटा सकते? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है ना कि ये गैदरिंग इलीगल है, हटाइए इनको यहां से। आपको लोगों की चिंता नहीं है। आपकी हरियाणा सरकार कह रही है वहां वैक्सीनेशन कैंप लगाएंगे। क्यों भाई? इलीगल गैदरिंग के लिए क्यों वैक्सीनेशन कैंप लगेगा वहां? ऑक्सीजन की पूर्ति करे, वो नहीं दिख रहा आपको? एक सेकंड, आप प्लीज चौधरी साहब भाषण मत दीजिए यहाँ पे, प्लीज इनको ऑडियो कम कीजिए। यहाँ भाषणबाजी मत कीजिए, या आपका कोई बॉर्डर नहीं है। आरपी सिंह, क्यों वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं वहां पे? व्हाई आर दीस पीपल बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एन इलीगल ब्लॉकेड एंड नाउ अ डेंजरस ब्लॉकेड? पद्मजा, हाउ इनसेंसिटिव पर्सन कैन बी। वहां से जब उसको लेकर गए, उसकी सांसें उखड़ रही थी। ये इनके यहाँ के लोगों ने कहा, और मैं इनको वीडियोस भेज दूंगा आपको, उसकी सांसें उखड़ रही थी, इसलिए उसको हॉस्पिटलाइज करा। और ये कहते हैं हमें पता नहीं कोरोना था उसको। तो सर, आपकी कार्यकर्ता, उसकी डेथ हो जाए, उसकी सांसें उखड़ रही थी, और आप तो इतने इनसेंसिटिव हो गए, आप तो कहते नहीं हमें पता ही नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें तो जानकारी नहीं है। तो भैया क्यों तंग करो? और एंड दिस नॉट द ओनली डेथ, देयर आर मेनी मोर हु हैव डाइड इन पंजाब बिकॉज ऑफ दिस। People have been infected here and gone to Punjab and infected. People who have gone to Haryana and have been infected. People in Rajasthan have been infected. People in UP has been infected. And sir, इलेक्शन तो बाद में हुए, महापंचायत पहले हुई थी, और आपने घूम कर महापंचायत की थी, अपनी भीड़ इकट्ठी की थी, वहां जाकर हल्ला भी किया था, और अपने पॉलिटिकल दोस्तों को भी, केजरीवाल को भी गया था पंजाब में, और प्रियंका वाड्रा भी आपके साथ घूमी थी, और वो आपके नेता ट्रैक्टर में भी घूम रहे थे कांग्रेस के। तो ये मत बताइए। और आप भी वहां पर कैंपेन करने गए थे, आपके नेता बंगाल के अंदर, बंगाल में आपके नेता भी गए थे, परंतु इशू वो नहीं है। द इशू इज दैट हाउ इनसेंसिटिव दे कैन बी। टुडे everyone knows, everyone is scared of corona, everyone is scared of what's happening in the country, but they have to still go on. I mean, you can keep protesting. The all three laws are being withheld, are on hold by the Supreme Court. Government also has kept it on hold for 1.5, 18 months, and Supreme Court also put it on hold. But still, so sir, if the Supreme Court has said, then why aren't you removing them, RP Singh? They are clearly insensitive. You are in government, you are sensitive. I am asking you very clearly, why isn't the Haryana government removing them? Apart from treating them like state guests, no, putting up camps for them, saying आओ चलो टेस्टिंग करा लो। सुनिए, अरे भाई, लोगों को टेस्टिंग मिल नहीं रही है, इनको टेस्टिंग कराएंगे जो कि सड़क पे घेर के बैठे हुए हैं। इनके नेता अभी कह रहे थे कि फॉगिंग और वो वहां पर छिड़काव हो रहा है, वो केजरीवाल साहब करा रहे हैं फॉगिंग छिड़काव। They have been supported by the government, the Delhi government, because they are on the border of Delhi, inside Delhi, and they have been supported by Delhi government. There are no more people in the Haryana borders. Okay, sir. Everyone is insensitive and callous. My simple question is, this is at the Delhi-Haryana border. Give me one reason why the Haryana police or the Delhi police cannot remove them. Far from setting up a vaccination camp or a testing camp for them. Is there any answer to this, RPC? Honestly. Moment you touch them, there'll be a lot of all leaders, everyone will be there on our neck. That why you touch them. But no one is saying that all those leaders, Mr. Rahul Gandhi, Mr. Priyanka Vadra, Mr. Kejriwal, Mr. Raghav Chadha, who are supporting them, they are none of them going and saying, please, we are saying with full. तो ये सही है दुष्यंत नागर, आप पंजाब में अपनी पॉलिटिक्स करते रहिए यहाँ पर। एंड बाय द वे, कंसिडरिंग कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, दुष्यंत नागर, आपको डर नहीं लगता कि 8 मई को सो कॉल्ड किसान नेता कह रहे हैं कि लॉकडाउन को डिफाई करो? वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लॉकडाउन में रहो, घरों में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, एंड ये नेता जिनको आपकी सरकार ने सपोर्ट किया है कह रहे हैं लॉकडाउन डिफाई करो, सड़कों पर आ जाओ। अब भी सपोर्ट करना चाहिए इनको? बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। ये किसान नेता भारत के आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको जानकारी होना चाहिए, खाने का तेल, सरसों के तेल की कीमत पिछले 1 साल में दुगनी हो चुकी है।
जो 90 रुपए लीटर, 90 रुपए किलो था, आज वो 160 और 170 रुपए भाई साहब, केजी। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि जो किसान नेता दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, आप उनकी एक तस्वीर देखिए दुष्यंत जी, एक सेकंड दुष्यंत जी, आप उनकी तस्वीर देखिए। एक आदमी मास्क नहीं पहना हुआ है, हर कोई सट सट के खड़ा हुआ है। पहले पंजाब में ये सड़कों पर निकलने वाले हैं 8 मई को, और फिर सारा वायरस लेकर के दिल्ली पहुंचने वाले हैं 12 मई को। और अभी भी आप कह रहे हैं कि ये आम आदमी की आवाज तो तब रहेगी ना जब जान रहेगी। जब वायरस से जान ही चली जाएगी तो फिर आवाज किधर बचेगी दुष्यंत जी? के हक के लिए लड़ रहे हैं। जो आप लोग बैठे हुए हैं ना देश में, घरों में बैठे हुए हैं, किसान उनके लिए लड़ रहा है। आपको सही मूल्य पे चीजें मिल सकें, देश के आम आदमी को, उद्योगपतियों का कंट्रोल कृषि के ऊपर ना है। लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी क्लियर, जो आधे से ज्यादा लोग हैं इनको तो इशू ही पता नहीं है। आप इशू की तो खैर बात भी मत कीजिए। अभी मैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट की बात करने शुरू करूंगी ना, यहाँ पे पैनल में जितने लोग हैं उनमें से 99.99% लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि उसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है। तो इशू की तो आप बात ही छोड़ दो। अभी तो यह है राजनीति, और राजनीति का यह वक्त नहीं है दुष्यंत नागर। इसको जानकारी नहीं है, आपको है जानकारी, आरपी सिंह जी को है, बीजेपी के लोगों को है, और किसी को नहीं है। किसान को गेहूं का क्या मूल्य मिल रहा है, आपने एक बार अपने रिपोर्टर को भेज के किसी मंडी में। दुष्यंत जी, मेरे को ये बताइए कि पंजाब में लॉकडाउन डिफाई करके कौन सी आम आदमी की आवाज उठाई जा रही है? क्या लॉकडाउन सही है या नहीं है? पहले तो ये बताइए आप। रहा है, इसके बारे में आपने जांच कराई? क्या एमएसपी गेहूं की मिली है किसान को 1750 रुपए क्विंटल में? सर आप मुझे ये बताइए कि पंजाब में जो लॉकडाउन लगा है वो सही है या नहीं है? लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कोविड से बचने के लिए? आप बताइए, दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, ये ठीक है या गलत है? आप बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली के सरकार को अगर लगता है कि ठीक है, अगर राज्य सरकार को लगता है तो राज्य सरकार को डिसीजन लेने देना चाहिए। माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, पंजाब में जो लॉकडाउन लगा है सही है कि नहीं है? इनकी सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया ठीक लगाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो लॉकडाउन लगाया राहुल गांधी के कहने पर, वो ठीक है या नहीं है? देखिए आरपी सिंह जी, बताइए ने जो राहुल गांधी के आदेश पर लॉकडाउन लगा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है? इतना बता दो यार। नहीं, जो कैप्टन लॉकडाउन लगाएंगे वो ठीक है या नहीं है? और क्या एक सेकंड, लेट हिम आंसर दिस, let him answer this RP Singh, just a second please, keep silence, let him answer। बताइए ना दुष्यंत जी, सही है कि नहीं है लॉकडाउन कोविड कंट्रोल के लिए? देखिए, राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है वो राज्य के हित में लिया है। कैप्टन हित में लिया है तो जो लॉकडाउन को डिफाई कर रहे हैं वो राज्य का अहित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 32 फार्मर यूनियन ने बोला है लॉकडाउन डिफाई करो, सड़कों पर आ जाओ, दुकानें खोल दो। क्या ये राज्य का हित है? तो वो कैप्टन साहब किसान, देखिए कैप्टन साहब किसान नेताओं के साथ बैठ के रास्ता निकालेंगे। उसमें किसान नेता जो कह रहे हैं वो उनसे बात करेगी पंजाब की सरकार, और कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन आज केंद्र की सरकार को सोचना है कि ये तीनों काले कानून, आप वो छोड़िए ना, बात जो होगी कि नहीं, जिसको पता है कि देश के अंदर कोरोना फैल रहा है और फिर भी विलफुली डिफाई कर रहे हैं लॉकडाउन को, उसको आप आम आदमी की आवाज कैसे कह सकते हैं डॉक्टर गुप्ता? एंड द हॉरर इज, एक सेकंड डॉक्टर गुप्ता, दैट दीज प्रोटेस्टर्स आर स्टिल सेइंग कि हम हर हफ्ते रोटेट करते हैं। जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो गांव में जाते हैं, जो गांव में होते हैं वो बॉर्डर पे आते हैं। ये कहते हैं कि हम अपना उसको एनर्जी देते हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वायरस वापस गांव तक कैरी कर रहे हैं। और अब तो ये प्रूव हो गया है इस बच्ची की डेथ से कि वायरस है वहां पर। डॉक्टर गुप्ता, आपके माध्यम से इन किसानों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये वायरस आज अगर करोड़ों में है तो कल एक वायरस था, और एक से इतना फैल करके पूरे विश्व में फैला है। अगर एक भी व्यक्ति या एक भी वायरस उस गैदरिंग में पहुंच गया है तो पूरे हिंदुस्तान में फैलाने के योग्य है। ये समझ नहीं रहे इस चीज, दे आर बिकमिंग ए सुपर स्प्रेडर्स। आसपास दिल्ली रोज आते हैं, गांव रोज जाते हैं, हर जगह जाते हैं। अभी मौमिता जी की डेथ हुई, ऐसे थोड़ी हुई।
कोरोना के टर्मिनल स्टेज पे गई है, यानी 10-15 दिन तो वो वहां पे थी। 7 से 21 डेज का उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उस पीरियड में अगर इनके साथ थे तो कहीं ना कहीं और को भी इन्फेस्ट किया होगा। ऐसे गैदरिंग को इनको थोड़ा देर देश हित में सोचना। सर मुझे कहने दीजिए हाँ, देश हित में थोड़ा सा भी अगर ये सोचे, स्ट्राइक होती है, मांगे रखी जाती है, मांगे मानते हैं, मांगे नहीं मानते हैं। परंतु आज बात दूसरी है। आज पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित। अगर ये कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ी गई तो 1905-7 में जब स्पेनिश फ्लू आया था तो हिंदुस्तान की 1/3 पब्लिक की डेथ हो चुकी थी। अगर ये लोग यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कंट्रोल करने का यही तरीका है तो ये वहां पर बैठे रहे। आपको पता है दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, थोड़े वक्त के लिए पता है। हाँ, अगर ये सरकार नहीं हटा सकती है आपको तो फिर आके बैठ जाइएगा, बट अभी देश हित का सोचिए, अपने खुद के लोगों का सोचिए और कम से कम अभी के लिए टेस्टिंग कराइए और घर जाइए। धर्मेंद्र मलिक जी अपने बताओ के बारे में पहले तो अपने लिए कीजिए और किसी के लिए मत कीजिए। धर्मेंद्र मलिक जी आप पैनल में बुला के बेइज्जती करोगे। आप कह रहे हैं कि 99.9 लोगों को पता नहीं मुद्दे क्या है। करो मुद्दे पे बात। आप वही विश्व का सारा ज्ञान आप में ही केंद्रित हो गया क्या? ये मुद्दा किसान के और उसका मुद्दा नहीं है, मांगों का। ये मुद्दा कोरोना का मुद्दा है। नहीं कर रहे, उन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आपकी बात नहीं रोक रहा मैं उनसे पूछ रहा कि पूरे विश्व का ज्ञान इनके अंदर ही आ गया क्या? आप पैनल पे बुलाओगे बेइज्जती करोगे? क्या नहीं पता? आप बात करो। आपने कहा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में जो पैनल में बैठे हैं उनको कुछ पता ही नहीं। आप करो बात, क्या पता करना आपको? सर देखिए, अभी हम उस मुद्दे पर जाएंगे तो हम कभी इसका डिस्कशन खत्म नहीं करेंगे। चलिए बताइए, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताइए। चलिए धर्मेंद्र मलिक जी, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताइए, क्या उसमें अमेंडमेंट किया गया है? एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट में क्या अमेंडमेंट किया गया है? चलिए बताइए। पहला अमेंडमेंट पूछ रही हूँ मैं आपसे, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट में क्या अमेंडमेंट किया गया है? जो हमारे हित में एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है वो सबसे बड़ा अमेंडमेंट ये है कि स्टॉक सीमा को समाप्त कर दिया गया है। कोई भी भंडारण कर सकता है, नहीं किया गया। दूसरा ये कर दिया कि जिसके पास साइलोज हैं वो उसके पास उसका डाटा होगा, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। आपात स्थिति में अगर इंटरनेशनल टेंडर किसी के पास है तो वो देश में अनाज नहीं दे सकता। इस बात में मेरे पास इंटरनेशनल टेंडर है। अरे आरपी सिंह चुप रहो यार, क्या झूठ बोल रहे हैं? अमेंडमेंट एक्ट हुआ नहीं है क्या? आप झूठ बोल रहे हो। बताओ आप झूठ बोल रहे हो। खत्म हुई या नहीं हुई? झूठ बोल रहे हो। मैं बताता हूँ आप झूठ बोल रहे हो। एक्ट उठाइए। आप मैं बताता हूँ क्या एक्चुअल में। एक्ट उठाओ आराम से। एक्ट उठाओ। स्टॉक सीमा खत्म हुई या नहीं हुई? ये कॉपी है। खत्म हुई या नहीं हुई बताइए। अनपढ़ो। अरे स्टॉक सीमा नंबर 1 पे खत्म हुई या नहीं हुई? उठा रखे उनकी तरह क्या लिखा है बोलिए। अरे बिल्कुल नहीं लिखा उसमें। उसमें लिखा है। सुनो यार, अरे सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो। सुन लिया आपको। लिखा ये है कि जो अरे सुनो यार, जो मेरी हो रही कैसे बोल रहे हो? उतनी जस्ट अ सेकंड, लेट्स नॉट डू तू मैं। पहली बात, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, जस्ट अ सेकंड धर्मेंद्र मलिक जी, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, या तो आपको पता नहीं है, जो कि मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है आप बहुत विद्वान हैं, या फिर आप भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात। फिर अब मैं बता दूं, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट में सिर्फ एक अमेंडमेंट कहा गया है जहां पर होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का अभी भी सरकार को अधिकार है। और ये बाय द वे सरकार ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया है सितंबर में, जबकि प्याज के दाम बढ़ रहे थे, होर्डिंग हो रही थी, तो उन्होंने दाम को कंट्रोल किया। ये एक्ट सिर्फ इतना कहता है दैट अगर केंद्र को ये पता चले कि अचानक किसी चीज का दाम बढ़ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा जाता है कि स्टॉक होल्डिंग लिमिट ऑफ कमोडिटी को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए रोक लिया जाए। उसमें वो ये कहते हैं कि ट्रेडर किसी भी चीज को होल्ड नहीं कर सकता है, बट ये सिर्फ उस चीज पर लागू होता है जब प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, हमेशा के लिए से लागू नहीं किया जाता है। धर्मेंद्र मलिक जी, तो ऐसा नहीं है
कि जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग हमेशा के लिए एक फ्री रेन दिया जा रहा है। ये मुझे पूरी तरीके से पता है, आपको भी पता है, आप सिर्फ इस डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि आप कैसे देश हित को ध्यान में रखते हुए अभी भी इस कोविड गैदरिंग से कंटिन्यू कर सकते हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, लागू नहीं होगा। धर्मेंद्र मलिक जी बताइए, आपको लगता है, धर्मेंद्र मलिक जी यहां सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं है, आप ये बताइए कि देश हित में क्या ये है कि अभी एक गैदरिंग जहां पर किसी की कोविड से मौत हो गई है कंटिन्यू करें? आप गुप्ता जी, डॉक्टर गुप्ता का जवाब दीजिए, बताइए। तीन चैनल के एंकर मर गए, टीवी चैनल बंद कर दो। क्या हम भी घर पे बैठे हुए हैं भाई, हम सड़क पे नहीं बैठे हुए, कोई भी सड़क पे नहीं जा सकता। हम भी जब सड़कों पे जाते हैं तो मास्क पहन के 6 फुट की दूरी से बात करते हैं लोगों से, ये फर्क है। हर चीज में टीवी एंकर मत कीजिए। हम 50 लोग बिना मास्क के जयकारा करते हुए नहीं आ रहे दिल्ली की तरफ। आप तस्वीर देखिए उन लोगों की जो कि पंजाब से दिल्ली आ रहे हैं। आपने जो है तबलीगी 50-100 लोग साथ में खड़े हुए हैं, ना कोई मास्क है ना कुछ है। आपको देश से आप यहाँ पर आकर के आवाज ऊंची करके बात करेंगे, उससे किसी की जान वापस नहीं आए। अरे आपको माफी मांगनी चाहिए धर्मेंद्र जी, मैं इस सब तू तड़ाक में नहीं पड़ती हूँ। सिंपल सी बात यह है, आप बताइए मौमिता जी की जो मृत्यु हुई है, जो एक 25 साल की बच्ची, एक सेकेंड, आप कहां इधर उधर ले जा रहे हो? आप इधर उधर मत ले जाओ प्लीज टॉपिक को। आप मेरे को सिंपल सी एक बात बता दीजिए धर्मेंद्र जी, एक सेकेंड धर्मेंद्र जी, आप तबलीगी जमात के पीछे मत पड़िए। तबलीगी जमात पे भी एक लंबी हम डिबेट कर सकते हैं विद फैक्ट्स। आज आप मेरे को बस इतना सा बता दीजिए, आप इतनी माफी के शौकीन हैं तो ये बता दीजिए कि मौमिता के परिवार से माफी कौन मांगेगा, कौन जिम्मेदार है उसकी मृत्यु का, बताइए। अब इस देश में जो मृत्यु हुई है कोरोना से, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? सरकार मांगेगी कि आप जो एजेंडा चला रही है आप मांगेगी? देश में मेरे गांव में 20 लोग मर गए, उनसे माफी कौन मांगेगा? ये मांगेगा सरकार है, ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रही है। जो निकम्मी सरकार अपने नागरिकों को ऑक्सीजन भी ना दे सकती हो, उससे निकम्मी सरकार हो नहीं सकती। आरपी सिंह टीवी पे बोलते हो, लोग सड़कों के बाहर तड़प रहे हैं, हर हॉस्पिटल के बाहर लाल लगी पड़ी है। अरे आप समझाकर खाने पे बेचूंगा, होटल में जाकर समझे तो लोगों को वहाँ डाला हुआ यकीन नहीं कर रहा है, मरवा दिया। आपको बढ़ाने के भेजूंगा, अच्छा होटल में रुकते जाकर। ठीक है, सरकार निकम्मी है, सरकार। चलिए आप बीजेपी की सरकार को, ओके, आरपी सिंह रिस्पॉन्ड टू हिम, ही सेइंग कि अल्टीमेटली रिस्पांसिबिलिटी तो आप ही की आ जाती है। कोरोना आप ना फैलने देते, ना कोरोना होता मौमिता को, ना उनकी मृत्यु होती। ये किस बात की नेतागिरी करते हैं? लोगों को अब तो कोई एक्सप्लेनेशन है ही ना। एक सेकेंड डॉक्टर गुप्ता मेरे को सिर्फ इतनी सी बात बताइए, ऑफ पीपल हु आर वाचिंग राइट नाउ, बिकॉज जनरली जब भी इस चीज को क्वेश्चन किया जाता है, इट इज सेड that you are cracking down on people who are speaking up against the government because ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, इसीलिए आप इनके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक जी भी यही कह रहे हैं। क्या आप विद फैक्ट से बता सकते हैं कि क्यों ये गैदरिंग अनसेफ है? पहली बात, क्या आप मानते हैं कि ये अनसेफ है? और अगर अनसेफ है तो क्यों अनसेफ है? क्या हो सकता है इस गैदरिंग से? डॉक्टर गुप्ता देखिए, सर्वविदित है कोरोना में कि किसी तरह की गैदरिंग, ये एक बड़ी गैदरिंग है। मैं तो कहता हूं अगर 10 लोग भी इकट्ठा होते हैं तो वो गैदरिंग भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी जो फैलती है एक दूसरे के नजदीक, जब सांस की ड्रॉपलेट्स में आती है और उसके दूसरे के कांटेक्ट में होती है तो वो इन्फेक्ट कर जाता है। अब यहाँ पर अगर गैदरिंग, जिस तरह से लोग किसान वहां पर बैठे हुए हैं, और बहुत सारी गैदरिंग, आज क्यों कहा गया है कि क्रिमेशन में सिर्फ 20 लोग जाएं, शादी में सिर्फ 50 लोग जाएं, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करें 6 फीट की, सभी लोग मास्क पहने, क्योंकि जो उसकी सांस की हवा और उसमें जो नमी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो दूसरे तक न चली जाए। और आज तो बिल्कुल नई थ्योरी कोरोना की आ रही है कि ये एयरबॉर्न है, यानी अगर आप दूर भी बैठे हैं तो उसकी सांस से भी हो सकता है, तो और आपको नजदीक नहीं बैठना है। तो ये तो फैक्ट है
और उसके लिए भी अगर आप वहां पर गैदरिंग कर रहे हैं तो हम आपसे सिर्फ किसान के लिए नहीं कह रहे, आप चूंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपकी वजह से भी कोरोना उतना फैल सकता है, इसलिए सामाजिक हित में हम सब लोग बात कर रहे हैं। इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है, ना तू मैं करने की, ना कोई राजनीति की बात है। बात सिर्फ इतनी है, हम आपसे इतना ही गुजारिश कर रहे हैं कि किसान भाइयों से कि आज या तो आप अपना धरना सस्पेंड कर दें कुछ दिनों के लिए, कोरोना कंट्रोल हो जाए, कोरोना कंट्रोल हो जाए। आपके अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं चौधरी साहब, भगवान ना करे यहाँ से कोई अपने गांव लेकर के चले गया वायरस, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग गांव में फैल जाएगा। चौधरी साहब, जोशी जी, आज अस्पताल में, लेट मी कंप्लीट सर, आज हॉस्पिटल में भी क्यों डॉक्टर पीपीई किट पहन के मरीज देखता है, पीपीई किट के पहन के उनको देखता है, क्यों? वो या तो वो ना इन्फेक्ट हो जाए या उससे किसी दूसरे को ना मिल जाए। हम कहते हैं आप पीपीई जानकारी मुझे दे पाएंगे? जी हाँ, आप सौ जानकारी। हाँ बताइए चौधरी साहब, बताइए। क्या ये कोरोना, ये जो हम बॉर्डरों पे बैठे हैं, इन्हीं से कोरोना फैल रहा है कि ये जो बीजेपी के भी लोग गैदरिंग कर रहे हैं इनसे भी फैल रहा है? ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए? जो सर मैंने कहा किसी भी तरह की गैदरिंग, अगर हॉस्पिटल लाइन भी लगती है ना अस्पताल में, तो भी हम कहते हैं दूर दूर खड़े हो। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति लाइन में खड़ा है उसमें कुछ लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, इसलिए या दूसरे को ना लगे। तो ये जी हाँ, ये जो हम टीका लगवा रहे हैं, क्या इससे हमें कोविड होने के चांसेस कम हो जाते हैं? 90%, 100% कोई नहीं कहता, क्योंकि ये टीका, सुनिए एक मिनट, ये टीका सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है। आप जब पैदा हुए होंगे तो आपको स्मॉल पॉक्स लगा होगा, अगर आप मेरी उम्र के, अगर नहीं होंगे तो टिटनेस लगा होगा, डीपीटी लगा होगा, है ना? बताइए अवनीत, डीपीटी लगा होगा। क्या इनको टीका लग जाए तो क्या ये धरना चल सकता है? एक सेकंड डॉक्टर गुप्ता, हाँ क्या बोल रहे हैं आप चौधरी अवनीत? क्या जितने आंदोलन पे बैठे हैं, क्या इनको टीका नहीं लगना चाहिए? लगवाइए, किसने मना किया? तो चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड एवरीवन, तो एक सेकंड, आपका लॉजिक ये है हम यही बैठे रहेंगे, आकर हमें पीपीई दे दो, हमारे को टीका लगा दो, हमारी टेस्टिंग कर दो। और जहां तक कि ये सवाल है, अगर आप ये भी चाहते थे तो ये बताइए, हरियाणा सरकार, ऑल्दो आई डोंट अग्री विद द मूव, हरियाणा सरकार तो आपकी टेस्टिंग भी कराने को तैयार थी, टीकरी बॉर्डर में टेस्टिंग क्यों नहीं करने दी गई? अब इसका जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं ना, हम तो नहीं हिलेंगे, हमें यहां पर सुरक्षा दे दो, तो अब ये बताइए कि वहां पे टेस्टिंग क्यों नहीं करने दी गई, उसका क्या जस्टिफिकेशन है? टेस्टिंग किसकी होती है? किसी का बुखार होगा तो उसी की तो टेस्टिंग होगी। जिसकी बीमारी नहीं है उनके ही टेस्टिंग करेंगे आप? जिसके कोई भी सिम्टम्स नहीं है उनकी टेस्टिंग करेंगे आप? अगर आप वो भी करना चाहते हैं, आप टीका भी लगाना चाहते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज तो बताइए, आपको तो सिर्फ ये नहीं है कि अनिल वैद जो हरियाणा के मंत्री हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है, डीजीपी हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। धर्मेंद्र मलिक जी, आप इस बात से इनकार करेंगे? यस, गो ऑन। अरे कोरोना से दुनिया में तमाम लोग मर रहे हैं, देश में मर रहे हैं। कैन आई प्लीज रिड्यूस धर्मेंद्र मलिक्स ऑडियो? लेट हिम फिनिश। कैन आई प्लीज हियर व्हाट ही इज सेइंग? यस, टेल मी। मैडम, हमारे देश में सब नागरिक को अधिकार है कोविड का टीका लगना। कोविड का टीका अब तक बना ही नहीं है इतना कि जितना लग सके। जो लगाने वाले थे केंद्र सरकार ने, जिनको अपना ठेका दिया था, वो सारे तो अब आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं चौधरी साहब। मेरे को लग रहा था कि आप कुछ कंस्ट्रक्टिव डिबेट करने वाले हैं। सिंपल बात यह है, चलिए एक सेकंड, सिंपल बात यह है कि आपको मौका दिया गया था कि आप टेस्टिंग करवाएं, उसके लिए भी मना कर दिया। अब आउटब्रेक हो गया है, और दुष्यंत नागर एक वजह दीजिए कि अब इस प्रोटेस्ट को लेजिटिमेट कहा जा सके और इसको डेंजरस नहीं करार दिया गया। देखिए पद्मजा जी, ये किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है, ये भारत की 70% आबादी के जीवन का मामला है। इसको इस प्रकार से हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप इस आंदोलन को खत्म करवाना चाहते हैं, एक लड़की की मृत्यु हो गई, अब कौन हल्के में ले रहा है? चाहिए हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जब 10, 20, 30, 300 लोगों को हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी पार्टी के ऊपर दबाव बनाएं, प्रधानमंत्री इन तीनों काले कानूनों को वापस लें,
किसान लोग खुशी खुशी अपने घर जाए। तो लोगों की मौत इसलिए होने दी जा रही है ताकि प्रधानमंत्री पे दबाव बने। एक सेकंड दुष्यंत नागर, तो इसलिए लोगों की मौत का इस्तेमाल हो रहा है ताकि दबाव बने। आप मौत से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्र हैं, लेकिन किसानों का जीवन बहुत जरूरी है। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। किसानों का जीवन बचाने के लिए ये तीनों काले कानूनों को वापस लेना बहुत जरूरी है। सरकार से कहिए तुरंत इन काले कानूनों को वापस ले। एक सेकंड, मैं आपसे दुष्यंत जी, मैं हम सब लोग मिलकर दुष्यंत जी, मैं आपसे और हम विजय प्राप्त करेंगे। अरे अब आप भाषण दे रहे हैं, एक सेकंड, अब आप भाषण दे रहे हैं। आपको, धर्मेंद्र मलिक को और चौधरी अवनीत पवार को मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूं। चौधरी अवनीत पवार, क्या आप मानते हैं कि कोरोना है, सच्चाई है या नहीं है? आपको लगता है कोरोना है ही नहीं? क्या आप मानते हैं कोरोना है? हमारे देश में मैडम रोज के 3,500-4,000 आदमी गुजर रहे हैं, तो ये कोरोना क्यों नहीं है? कोरोना है ना? तो मैं आपको बताती हूं कि संयुक्त मोर्चा के बलबीर सिंह, एक सेकंड, कोरोना है, बहुत खुशी की बात है कि आपने ये माना, क्योंकि आपके जो नेता हैं बलबीर सिंह राजेवाल, उनका कहना है बीजेपी इज गिविंग एक्सक्यूज दैट फार्मर्स आर स्प्रेडिंग कोरोना, बट फार्मर्स आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, गवर्नमेंट इज इंपोजिंग लॉकडाउन टू हाइड फेलियर एंड टेक एंटी पीपल डिसीजन। तो यानी कि किसान नेता कह रहे हैं कि लॉकडाउन कोरोना के लिए नहीं हो रहा है, लॉकडाउन हमारा हक छीनने के लिए हो रहा है। आप भी मानते हैं ये चौधरी साहब कि लॉकडाउन की तो जरूरत ही नहीं है, खुले में सब लोग घूमे, सब खुशी खुशी घूमे? मैडम इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, कोरोना है लेकिन फार्मर्स इससे फैला रहे, ये कहना गलत होगा। फार्मर्स क्यों फैला रहे? कोरोना आज से नहीं है, सरकार को तो पहले से ही पता था कि इस तरीके से डेटा इंक्रीज होता जा रहा है। लॉकडाउन तो हम पहले भी लगा सकते थे, हमने इतने देर में जाके लॉकडाउन क्यों लगाया? अगर आपको एक चीज बताइए, हम एक जोन में बैठे हैं, हम एक एरिया में बैठे हैं, उस एरिया को आप ब्लॉक कर दीजिए। हम इधर से उधर तो वैसे भी नहीं जा रहे ना, हम इधर से उधर वैसे भी नहीं जा रहे ना मैडम। चलिए, तो हमारा धरना तो कंटिन्यूअस चल रहा है। हम ये इधर से उधर, आरपी सिंह, ये उधर से उधर कहीं नहीं जा रहे हैं। आप इनके लिए कैंप लगा दीजिए। एनीवे हरियाणा की सरकार तो कर ही रही है, उनके लिए कैंप लगा ही रही है, इनको पीपीई किट भी दे दीजिए, उनके लिए सब सुविधाएं कर लीजिए, वहां पर एक टेंट भी लगा दीजिए, एक गांव बसा दीजिए, इनको सुविधाएं दे दीजिए, कम से कम बाकी आसपास के लोग तो सेफ रहेंगे। आरपी सिंह, पहली बात तो स्पष्ट कर दूं इनको कि लॉकडाउन हमने नहीं लगाया, लॉकडाउन राज्य की सरकारें लगा रही हैं, जो सरकारें इनको सपोर्ट कर रही है, पंजाब सरकार वो लॉकडाउन लगा रही है जिसका ये विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, पंजाब से रोज एक खेप आती है और एक खेप जाती है। जो लोग यहाँ से गांव जा रहे हैं वहां पर कोरोना लेकर जा रहे हैं, जो वहां से वापस आ रहे हैं वो लेकर भी आ रहे होंगे वापस, तो निश्चित है। और जो आज पंजाब में या हरियाणा में जहां से आप लोग आ जा रहे हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां कोरोना का आवागमन आपके कारण से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपनी बात को आप पट्टी बांध रहे हो आपको पर, अलग बात है। हकीकत ये है इस समय हालात नहीं है कि आप आंदोलन जारी रखें। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और ईमानदारी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप आंदोलन जारी रख लेना, 3 महीने बाद कर लेना, 6 महीने बाद कर लेना, जब स्थिति अच्छी हो जाए कर लेना, कौन रोक रहा है आपको? आपने कहा था ना अभी 2 साल चलाना कौन रोक रहा है? परंतु इस समय स्थिति इस प्रकार की नहीं है जहाँ पर आपके किसान भाई जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। कौन चाहता है कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो? जो 3900 की हो रही है वो भी गलत हो रही है, अगर कल आप में से एक की हो गया वो भी गलत है, और आगे वो भी गलत है, और आपके कारण से बाकी होगी वो भी गलत है। इनफैक्ट ये कोई पार्टी या मैं नहीं हूं दुष्यंत नागर जी और चौधरी साहब जो कि कह रही है कि ये जो हो रहा है गलत है और इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के महीने में कहा है गांव बसाना है तो बसाएं, दूसरों की जिंदगी बाधित करने का आपको कोई हक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एंड आई एम गोइंग टू लीव इट ऑन दैट नोट बिकॉज on the 7th of May is the next hearing of the case which has been filed by a Delhi resident where she has said that this is an affront to my right of freedom and right to life. We are certainly hoping that at least in this dangerous situation where people are rightly angered about any public gathering, the Supreme Court, the Madras High Court was angered about election gatherings and rightly so. People are angry about any religious gatherings, rightly so. We should be equally angry about this and careful about this, especially now that a death has taken place. This should not be allowed to escalate. Hoping that better sense prevails. Thank you very much all gentlemen for joining me on Debate One.